गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है स्पेशल असेंबली करने वाले हैं दिवाली की ओकेजन में। ठीक है, ये असेंबली हम डिजिटल पहली बार कर रहे हैं और ये एक अच्छा मौका है जिसमें हम डिजिटली जो है दिवाली मना सकते हैं विदाउट क्रैकर्स। ठीक है, तो बाल भवन की ओर से आज हम स्पेशल दिवाली के लिए असेंबली जो है वो करने वाले हैं 9D की तरफ से। सबसे पहले जो है हम इस असेंबली की शुरुआत करने वाले हैं वैष्णवी के गणेश वंदना से। वैष्णवी, यस मैम। स्टार्ट कर दीजिए बेटा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश वीडियो देवा। ऑन। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा। सूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूष की सवारी। माथे पर तिलक सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। थैंक यू। अब मयंक जो है अब बताएंगे कि दिवाली जो है किस तरीके से विदाउट क्रैकर्स हम मना सकते हैं। It is true that Diwali is the festival of lights, happiness, and food, and not of pollution or harming someone or something. Good morning, all of you. Today I am going to tell you how to celebrate Diwali without firecrackers. As we all know, Diwali festival is a festival of Hindu religion, which is celebrated in all over India every year. It is celebrated to make happiness in light of the return of Lord Rama, Sita, and Lakshman from the 14 years exile. From many years, we are continuously celebrating Diwali with lots of joy, excitement, and happiness. And this excitement is mainly for bursting crackers. Both elders and children like to burst crackers alike, but we don't know its consequences. On Earth and on our Earth, bursting crackers led to air, soil, and noise pollution. Every year we burst crackers in India, and we also saw its result in front of us after 2-3 days of Diwali. After every Diwali, the air pollution occurs so much around in our country, which is very harmful for us and animals also. But we didn't understand that till now. So this Diwali, government itself has banned the crackers to avoid pollution in India. But the question arises that how to celebrate Diwali without firecrackers. But friends, there are many other ways to celebrate Diwali. This Diwali, we also have to take COVID precautions. So we can plan some outing or watch movie with our family at home. We can also lit many diyas or candles this time on our homes. Also with that, we can decorate our home more beautifully by hanging lampshades,
with flowers or by making rangoli. We can also make Diwali treats at home and invite our friends and relatives on that instead of spending thousands and thousands rupees in crackers and sweets or chocolates and circulating them to friends and relatives. This year, for a change, we can make sweets at home with our family members. This let you to have more enjoyment. We can also throw a house party or play games on Diwali with lots of delicious food. You can also do charity funding by the money you save from crackers. We can also use green crackers like filling balloons and bursting it with incense sticks or making envelope crackers and bursting it. This will let you enjoy more and more. At last, I would like to conclude by saying that let's celebrate real Diwali by spreading happiness, not pollution as Diwali is the festival to give life, but we kill animals and birds by using such crackers. Thank you. Stay safe, stay at home. Happy Diwali to all. Now, Akansha, tell everyone about why we celebrate Diwali. Okay, ma'am. Good morning, everyone present here. Today I'm here to deliver my speech on Diwali. Diwali is one of the Indian biggest and main festival. Diwali is surely one of the greatest festival in the world. Hindus celebrate it with very much joy. In this festival, people light up their houses with diyas, candles and lights. People worship Lord Ganesh and Goddess Lakshmi for wealth and wisdom. This also indicates the victory of good over evil and knowledge over ignorance. The main reason to celebrate Diwali is also return of Lord Ayodhya of Lord Ram after he defeated Ravan, the Asur king of Lanka. So every year on this day we celebrate it as a symbol of godness. The Lord Rama with his wife Sita and younger brother Lakshman came back to Ayodhya. They spent 14 years of exile in the forest. People have a fascination for lighting crackers in India. They intend to buy all kind of cracker and light them is just for fun. This cracker may be visually a delight to see, but they are equally harmful for both human and animals. As the people all over the India light crackers on this day, there is an immense amount of air pollution and noise pollution seen. On one single day, the whole country produces so much of pollution that it become difficult for people to live in there. That's why we should not burn crackers. Finally, to sum up, Diwali is a grateful event in India. One cannot visualize the delightful contribution of this glorious festival. Have a happy and safe Diwali. Thank you. Now it's turn to Tvesh to show the presentation. त्वेष प्रेजेंटेशन दिखा पा रहे हो बेटा आप? नो मैम। मैंने आपको प्रेजेंटेटर बना दिया है, अब आप दिखा सकते हो। स्क्रीन शो करो अपनी। यस। जब तक त्वेष अपनी स्टार्ट करते हैं तब तक जो है वृंदा अपनी पोयम बोल सकती हैं। मैम कर दिए मैम। ठीक। मैम वीडियो ऑन नहीं हो सकती मैम। मैम स्क्रीन शेयर करते वक्त। हाँ जी, आपकी स्क्रीन अभी आ नहीं रही है, मेरी ही स्क्रीन आ रही है। यस। मैम अब आ रही है मैम स्क्रीन?
हाँ जी। ओके मैम। वेरी गुड मैम। त्वेश, तो वेरी नाइस त्वेश, बहुत अच्छी बनाई है आपने। थैंक यू अब मैम। जो है वृंदा बेटा आपकी बारी है पोयम बोलने की। वृंदा यस मैम। जी। ओके। वह मंगल दीप दिवाली थी, दीपों से जगमग थाली थी। कोई दिए जलाकर छोड़ गया, आशा की किरण को तोड़ गया। कैमरा इस सीधा। बार न ये एक सेकेंड, इस बार न ये हो पाएगा, अंधियारा न टिक पाएगा। कर ले कोशिश कोई लाख मगर, कोई दिया न बुझने पाएगा। जब रात में 12 बजते हैं, सब लक्ष्मी पूजा करते हैं। रात की काली माया के लिए दीपों से उजाला करते हैं। दिवाली खूब मनाएंगे, लड्डू और पेड़े खाएंगे। अंतर्मन के अंधेरे को दीपों से दूर भगाएंगे। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके बाद संयम अपनी स्पीच बोलेंगे। Good morning to all. My name is Sayam Jain. Today I am going to deliver a speech on the topic Diwali. Diwali, also known as Deepavali, is one of India's biggest festivals. The word Deepavali means rows of lighted lamps. It is a festival of lights and Hindus celebrated it with joy. During this festival, people light up their house and shops with diyas. They worship the Lord Ganesha for welfare and prosperity and Goddess Lakshmi for wealth and wisdom. But we should always celebrate without burning firecrackers because it increases the pollution which is harmful for us. This festival is celebrated in the Hindu month of Kartika Masam, which falls sometime during October or November. It is celebrated to mark the return of Lord Rama after 14 years of exile and his victory over the demon Ravana. In many parts of the India, Diwali is celebrated for 5 consecutive days. Hindus regard it as a celebration of life and use the occasion to strengthen relationships. In some part of India, it marks the beginning of a new year. People clean and decorate their house before the festival. They do colorful rangoli artwork on the floor. Diwali is celebrated and it is a public holiday in countries such as Nepal, Sri Lanka, Singapore, etc.
It is also school holiday in many states of the United States with a large Hindu population. President George W. Bush had the first celebration of the India of the holiday in the White House. Hindus light up their homes and shops to welcome the goddess Lakshmi and to give them good luck for the year ahead. A few days before Ravgate, which is the day before Deepavali, houses, buildings, shops, and temples are thoroughly cleaned, whitewashed, and decorated with pictures, toys, and flowers. On the on the day of Deepavali, people put on their best clothes and exchange greetings, gifts, and sweets with their family and friends. Thank you. So nice thought, Sayam. Now Rakshit, Anjali, कृति और जलज अपनी जो डेकोरेशन के लिए उन्होंने बनाया था वो शो कर सकते हैं. स्क्रीन शेयर कीजिए रक्षित, अंजलि, और आप दिखा पाएंगे अपना पोस्टर. यस मैम. अंजलि, मैम हो रही मैम, स्क्रीन शेयर हो रही मैम. जी बिल्कुल, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है. अंजलि, यस मैम. आप भी स्क्रीन शेयर कीजिए. यस मैम. जलज, मैम. कृति, कृति स्क्रीन शेयर करो बेटा. कोई बात नहीं. दिव्या, आप अपनी स्पीच दे सकते हैं. हाउ वी सेलिब्रेट दिवाली. एक्सक्यूज मी मैम, मैंने वीडियो ऑन कर रखी है. जी बोलिए दिव्या, स्टार्ट कीजिए. यस मैम. मैम कृति बंसू मैम, मैंने वीडियो ऑन कर रखी है. ठीक है कृति, आपने दिखाई बेटा, दिखाइए. Lavish meals, bright lamps, दिव्या festive वेट बेटा, activities. दिव्या वेट करना एक मिनट. ओके जी कृति दिखाइए बेटा अपनी स्क्रीन. आगे आगे होगा, अब जाओ. ठीक है दिव्या, आप स्टार्ट कर दीजिए. Lavish meals, bright lamps, festive activities, colorful garlands. These are elements of Diwali festival, which is round the corner. Good morning everyone. My name is Divya Joshi. Today I am here to tell how the festival of Diwali affect on our environment. Let's start. Diwali is a festival that illuminates the earth as well as the skies and bring joy. It is no doubt the most famous Indian festival. However, there is one negative side associated with this great festival. That is the massive amount of pollution which the festival of Diwali generates. The primary cause of the harmful pollution is certainly the bursting of firecrackers. It has become custom to burst firecrackers on Deepavali. But bursting on various types of firecrackers increase environment pollution.
as they contain sulfur dioxide, carbon dioxide, and carbon monoxide, which get mixed with air and cause several diseases like asthma, bronchitis, and hypertension, etc. It not only affects the people of all age groups, but also the lives of animal, bird, and other living beings. 2. Air and noise pollution. Air pollution is certainly the biggest type of pollution on Diwali. The harmful effect of burning crackers remain for many days after Diwali. Although these days government is striving hard to reduce pollution. Media is also supporting this. School and various organizations are also striving to educate the people for the pollution. To the pollution-free festival. Yet some people think that the Diwali is incomplete without busting of firecracker. They think having a ban of firecrackers is the violation of their right of celebrating festival on their way. But I think Diwali is not about all firecrackers. It is a beautiful festival of light, exchanging gifts, having parties, cleaning and decorating our home, and having a lot of fun with families and friends. We all should practice celebrating the pollution-free Diwali every year in order to save the natural beauty of environment and make ourselves healthy to enjoy each day more and more. So let us have a smoke-free and breathe-free Diwali. Wish you a very happy Diwali, all of you. Thank you. Now it's turn to Simarji. सिमरजी। यस मैम। मेरे सभी अध्यापकगण एवं मित्रों को सुप्रभात। मैं सिमरजीत सिंह गोला 9वीं कक्षा का छात्र आज आप सभी के सम्मुख इस कोविड-19 महामारी के दौरान दिवाली कैसे मनाएं इस बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। दिवाली लगभग यहाँ है और हर कोई बहुप्रतीक्षित और भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक की तैयारी कर रहा है। लेकिन वर्तमान कोविड-19 महामारी को देखते हुए हम उत्साह के साथ त्योहार नहीं मना पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि वायरस कितना घातक है। इस तथ्य सहित कि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा हमें अपने आप को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए पहले से कहीं अधिक सतर्क होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जश्न नहीं मना सकते। इतिहास से पता चलता है कि पटाखे खुशी का प्रतीक थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि और हरे आवरण में कमी पटाखे फोड़ने से वायु, भूमि और ध्वनि प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है। नई दिल्ली में कोविड-19 के मामलों की संख्या का ध्यान में रखते हुए, जिसके कारण माना जाता है कि फसल अवशेषों के जलने के कारण वायु प्रदूषण होता है, जितना हो सके पटाखे फोड़ने से बचना चाहिए। इसके अलावा जब से लोग महीनों से होम बाउंड हैं, वे मान रहे हैं कि महामारी का सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है और अब वह बाजार में घूम रहे हैं, जो वायरस फैलाने का एक उपजाऊ उदाहरण है। कोई भी ऑनलाइन खरीदारी करने और उसके माध्यम से उपहार भेजने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन यह स्थानीय अर्थव्यवस्था का सीमांत दुकानदारों के लिए हानिकारक है, जो अभी भी लंबे समय तक बंद होने के प्रभाव में है। उन्हें भी समर्थन किया जाना चाहिए और समारोह का हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि शाम में समय बाजार में भीड़ चरम पर होती है, इसलिए बाजार में कम भीड़ होने पर शुरुआती घंटों के दौरान खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा किसी को सुरक्षात्मक उपायों का पालन करना चाहिए, जैसे कि ठीक से मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना और हर समय अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग करना। दिवाली के दौरान या उससे पहले मित्रों और रिश्तेदारों का दौरा करना और शुभकामनाएं प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो दिवाली समारोह का एक हिस्सा है। ऑनलाइन गिफ्टिंग और उपयुक्त विकल्प हो सकता है। व्यक्ति से मिलने और संपर्क में आना जितना संभव हो उतना कम से कम होना चाहिए। अगर दौरा करना है तो सभी परिस्थितियों में 3 सुरक्षात्मक उपायों का पालन करना चाहिए। इसका एक उचित विकल्प समूह वीडियो कॉल है, जो अभिवादन का आदान प्रदान करने
के लिए सुरक्षित तरीके से तुलना करता है। आइए हम पटाखे फोड़ने का दुष्प्रभावों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखा मुक्त दिवाली मनाने का संकल्प लें। दिवाली मनाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल और पारंपरिक तरीकों करने और कोविड-19 के लिए स्वयं को बचाने के लिए उचित सावधानी बरतें। आइए हम खुद को याद दिलाएं कि महामारी अभी यहाँ है और कोई भी लापरवाही के शिकार हो सकता है। धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी दिवाली के दिन 14 साल का वनवास काट के अपने घर अयोध्या वापस आए थे। सभी लोगों ने उनका स्वागत दिया जलाकर किया था। इस साल की दिवाली थोड़ी सी अलग जरूर होगी। वो इसीलिए अलग है क्योंकि कोरोना वायरस से जो है हमारा पूरा विश्व जो है वो अब जूझ रहा है, और इसीलिए इस साल दिवाली भी मनाई जाएगी और इस बात का ध्यान भी रखा जाएगा। और मैं ये सब बच्चों से अपील करूंगी कि सारे बच्चे अगर मार्केट में घूमने जाते हैं तो मास्क लगाकर जाएं, अपने हाथों को टाइम टाइम पर सैनिटाइज करते रहें और इस चीज का ध्यान रखें कि दिवाली को मनाइए क्योंकि ये खुशियों का त्योहार है, ठीक है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि ये दिवाली जो है इको फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि पॉल्यूशन जो है वो अब की बार उतना ना हो। वैसे ही दिल्ली का पॉल्यूशन इस वक्त अपनी चरम सीमा पर है, तो हमें जो है पॉल्यूशन को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है इस चीज का संकल्प लेंगे कि इस साल जो है वो पटाखे नहीं जलाएंगे, ना ही फोड़ेंगे, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है और इन सब चीजों का असर हमारे पूरे वातावरण पर होता है। तो अपने वातावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अब की बार दिवाली जो है वो बिना क्रैकर्स के होनी चाहिए। कितने बच्चे तैयार हैं इस चीज के लिए कि अब की बार दिवाली जो है विदाउट क्रैकर्स मनाई जाएगी? बहुत सारे बच्चों के हाथ खड़े हैं, शाबाश। अब की बार काफी बच्चे जो हैं वो सपोर्ट में हैं। वेरी गुड। तो बच्चे आप अपनी वीडियोस ऑन करके भी ये चीज बोल सकते थे, मुझे और अच्छी लगती। चलिए, तो अब जो है क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिवाली है तो थोड़ा सा मस्ती थोड़ा सा मजाक तो होगा ही, और साथ में आपके ये भी देखा जाएगा कि बच्चे जो है वो कितना अच्छे से मुझे जवाब दे सकते हैं क्विज का। तो हम क्विज रिलेटेड जो है अब कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, तो जो बच्चा आंसर देगा वो ध्यान रखेगा कि अपना वीडियो सब बच्चों ने ऑन रखा है। और टीम 2 बनाई जाएंगी, एक बॉयज की टीम है, एक गर्ल्स की, ठीक है। पहला सवाल जो है वो बॉयज की टीम से है, देखते हैं कौन जवाब देता है और लास्ट में मैं विनर डिक्लेयर करूंगी। जो भी बच्चा जो है जवाब देगा गर्ल्स टीम जीतती है या बॉयज टीम, ठीक है। मेरा पहला सवाल, राम जी किसके अवतार हैं? विष्णु जी के। वेरी गुड, शाबाश। अगला सवाल, सीता जी का जन्म कहाँ हुआ था और आज वो किस जगह पर है? मैम जनकपुर। मैम जनकपुर। मिथिला, जो कि आज है बिहार में। अगला सवाल, दशरथ के कितने पुत्र थे और उनकी माताओं के नाम बताओ। मैम दशरथ के 3 पुत्र थे और मैम उनकी माताओं के नाम थे मैम मैं बताऊं? कैकेयी, बोले कि सिर्फ बॉयज। मैम कैकेयी माता, कौशल्या माता और सुमित्रा माता। गर्ल्स नहीं बोलेंगी आप, बॉयज और मैम सुमित्रा माता। हाँ जी त्वेश, क्या जवाब है? यस मैम। कितने पुत्र थे दशरथ जी के और उनकी माताओं के नाम बताइए। मैम 4 पुत्र थे। वेरी गुड। मैम माता थी मैम सुमित्रा, मैम कैकेयी, और मेरे को याद नहीं आ रही मैम। मैम का ही नाम बोलिए। चलिए कोई बात नहीं। यस कौशल्या, लेकिन सारे बॉयज मिलकर दे रहे हैं जवाब। चलिए अगला सवाल, रावण ने सीता जी को लंका में कहाँ रखा था? अशोक वाटिका में।
बॉयज ने बोला, गर्ल्स ने बोलना था ना। अगला सवाल, सीता जी को ढूंढते हुए हनुमान ने रावण के किस पुत्र का वध किया? अक्षय कुमार। शाबाश, अक्षय कुमार, वेरी गुड। बट अनाउंस कैसे करूंगी? आप सब इकट्ठा बोल रहे हैं ना। चलिए, सुग्रीव किस नगरी का राजा था? मैम किष्किंधा। किष्किंधा। बिल्कुल सही। किष्किंधा। लक्ष्मण जी की पत्नी का क्या नाम था? मैम देखते हैं कौन बताता है, जल्दी। गुड, सही है। मेघनाथ को किसने मारा? लक्ष्मण जी ने। रावण ने सीता का अपहरण किस वाहन से किया था? मैम पुष्पक विमान। सही है, बिल्कुल सही है। हनुमान जी कौन सी जड़ी बूटी लेने गए थे और कहाँ? संजीवनी बूटी। संजीवनी। कहाँ? हिमालय पर्वत। वो संजीवनी पर्वत पे गए थे। हिमालय पर्वत पे गए थे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। सवाल बच्चों ने बहुत अच्छे से दिया है, तो विनर डिक्लेयर कर लेते हैं कि ज्यादातर जवाब जो है वो मिक्स आए हैं। ठीक है, और वैसे गर्ल्स ने जो है वो ज्यादा जवाब दिया है, तो इन क्विज की जो विनर है वो है गर्ल्स। ठीक है, क्लैपिंग तो बनती है। चलिए बेटा, इस दिवाली मैं चाहूंगी कि आप सब एक काम जरूर करें। इस बार अगर हम पटाखे नहीं फोड़ रहे तो क्या उन पैसों से हम किसी की मदद कर सकते हैं? आपके आसपास कोई भी हो जिसको जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है कि हमें जो है वो एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। तो इस बार हर बच्चा जो है कोशिश करे अपनी तरह से किसी ना किसी की मदद करने के लिए, चाहे घर में साफ सफाई में अपने पेरेंट्स की मदद करें या अपने पड़ोस में अगर किसी का देखते हैं तो अब की बार पटाखों के ऊपर पैसे खर्च ना करते हुए उन पैसों का इस्तेमाल या तो कहीं दान दे दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, समाज का भी भला होगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आज अपने ध्यान में रखेंगे। सभी बच्चे जो हैं, मैंने उनको बोला था कि दिया जलाएंगे हम लोग लास्ट में, तो आप सभी लोग जिनके पास भी मोमबत्ती या दिया है वो जलाएं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे सारे बच्चे कि जो है उनको सुख और समृद्धि दें, साथ में बुद्धि भी प्रदान करें। इससे क्या होगा कि हम जो है सबका भला जो है वो मांग सकते हैं। तो सभी बच्चे जो हैं क्या करेंगे, कैंडल जलाएंगे, दिया जलाएंगे, जिनके भी पास है, मैंने उनको बोला था। ठीक है, और सभी जो है 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे माँ लक्ष्मी से कि वो बुद्धि और समृद्धि जो है आपको प्रदान करें। देखिए मैंने जलाई है। सभी बच्चे जो हैं दिखाएं मुझे। सब बच्चे जो है प्रार्थना करें। कि सब बच्चों को माँ लक्ष्मी जो है अच्छी सेहत, बुद्धि, धन सब कुछ दे। ठीक है, तो इसी दिए की रोशनी में आज जो है हम दिवाली की असेंबली का समापन जो है वो यहीं पर करते हैं। ठीक है, हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। ध्यान रखेंगे कि कोरोना वायरस से बचें, मास्क पहने और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। हैप्पी दिवाली बच्चों।
हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली मैम। Happy Diwali, ma'am. हैप्पी दिवाली मैम।